Friends, in this video we are going to revise the topic sentence and its kinds. So let's see the types of sentences first. So what are the types of sentences? Declarative sentence, interrogative sentence, exclamatory sentence, and the last one is imperative sentence. So children, first let's understand the definition of sentence. So what is a sentence? Sentence is a group of words containing a subject and a verb that expresses a statement, a question, etc. A sentence begins with a capital letter and ends with a full stop. It means periods. So children, now we saw the definition of sentence and what you have understood. So ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. इट मीन्स शब्दों का वो समूह दैट कंटेन जो शामिल करता है अ सब्जेक्ट एक कर्ता को, अ वर्ब एक क्रिया को, एंड वो क्या एक्सप्रेस करते हैं, वो क्या व्यक्त करते हैं. अ स्टेटमेंट, अ क्वेश्चन, ईटीसी. अब जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें एक सब्जेक्ट भी है, एक वर्ब भी है, सो वो क्या एक्सप्रेस कर सकता है, कोई स्टेटमेंट, कोई कथन या फिर कोई क्वेश्चन. इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें सेंटेंसेस एक्सप्रेस करते हैं. अ सेंटेंस बिगिंस विद, एंड चिल्ड्रन मोस्ट ऑफ द टाइम दिस इज़ अ वेरी कॉमन मिस्टेक मेड बाय द चिल्ड्रन. what that we start making the sentences with the small letter anywhere anytime, but this is a blunder. So whenever we are starting a line or a sentence, make sure that the first letter of the sentence should be in capital form. Next, sentence ends with a full stop. So when the sentence is complete, when we are done with the sentence, then we should always put a full stop in the end of the sentence. Children, here in bracket I have written period. Period means full stop. So whenever I say period, that means full stop. And full stop, we know the point जो एक dot होता है which we put in the end of the sentence. So let's one example of the sentence. The police caught the criminal. पुलिस ने क्रिमिनल को पकड़ लिया. So see, my sentence is starting with the capital T and ending with a period. Now let's see the next part. Now we'll see the first type of or kind of sentence is declarative or assertive sentence. So declarative or assertive sentence means when a sentence talks about any information, किसी information के बारे में बताता है, और that always ends with a period, और उसका जो end है वो हमेशा एक full stop से होता है. So such sentences are called assertive sentence or declarative sentence. Now let's see the definition. Such sentences make a statement and give information about people or things. So declarative sentence और assertive sentences क्या करते हैं, वो किसी statement, किसी कथन को कहते हैं या फिर कोई सूचना देते हैं लोगों या फिर किसी चीज़ों के बारे में. For example, I do my work on time. So children, here information I के बारे में, I अपने बारे में क्या information दे रहा है कि मैं अपना टाइम पर काम करता हूँ. Now the next sentence, he is going to my cousin's wedding. वो मेरी cousin की wedding में जा रहा है. So here again a statement is made for he, और एक information दी जा रही है के बारे में कि वह मेरी cousin के wedding में, शादी में जा रहा है. Now again two things you need to notice, that each declarative sentence will be ending with a period, right? And the beginning always will be with capital.
Now comes imperative sentence. So imperative sentence, children, it's really very easy to understand because see most of the time जो सेंटेंस होते हैं दे स्टार्ट विद अ सब्जेक्ट. वो एक सब्जेक्ट, एक करता, ही, शी, दैट, इट, नो, इन सब के साथ स्टार्ट होते हैं. बट दिस सेंटेंस never starts with subjects. It always starts with direct verb, or if it is negative then it will be starting with do not, right? So sentence की जो beginning होगी वो हमेशा इसको पहचानने के लिए we should always remember that sentence की शुरुआत हमेशा क्रिया यानी verb से होगी. and अगर negative है क्रिया से तब होगी जबकि सकारात्मक पॉजिटिव सेंटेंसेस होंगे. और इफ़ द सेंटेंस इज नेगेटिव इट विल बी ऑलवेज स्टार्टिंग विद डू नॉट यानी डोंट. सो लेट्स सी द डेफिनेशन नाउ. सच सेंटेंसेस मेक अ कमांड, अ रिक्वेस्ट और एन एडवाइस. सो जो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं दे ऑलवेज मेक अ कमांड, किसी को ऑर्डर देते हैं, किसी को रिक्वेस्ट करते हैं और किसी को सलाह देते हैं, राइट? सो इफ़ यू सी द एग्जाम्पल यू मे बी क्लियर विद दिस कंसेप्ट. टेक आउट योर नोटबुक और बुक एंड स्टडी. सो हियर समवेयर किसी बड़े ने या फिर किसी टीचर ने बच्चों से कहा है कि अपनी बुक निकालो. सो चिल्ड्रन यहाँ पर अगर आप देखेंगे बोलने वाला जो इम्पेरेटिव सेंटेंस बना रहा है वो हमेशा सामने वाले से ये बात बोलेगा. और क्योंकि सामने वाले उसको सुन रहे हैं तो उसको हम सामने वाले का नाम नहीं लेंगे, ठीक है? सपोज़ अगर चिल्ड्रन स्टूडेंट से टीचर कहता है कि अपनी बुक निकालो, ठीक है? तो ज़्यादातर जनरली टीचर्स नेवर कॉल देम बच्चों बुक निकालो. वो कहते हैं बुक निकालो या बुक निकालिए, टेक आउट योर बुक, ठीक है? सो वो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं स्टेटमेंट्स बोलते हुए कमांड देते हैं या फिर एडवाइस देते हैं और या फिर रिक्वेस्ट भी करते हैं. सो द फर्स्ट सेंटेंस इज़ पॉजिटिव. ये एक टेक यानी वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, टेक आउट योर बुक एंड स्टडी. एंड द सेकेंड सेंटेंस इज़ नेगेटिव एंड इट इज़ स्टार्टिंग विद डू नॉट. सो डू नॉट ईट टू मच ऑयली फूड. यस, हमें ऑयली फूड नहीं खाना चाहिए. सो कोई किसी से कह रहा है इम्पेरेटिव सेंटेंस बनाते हुए कि ऑयली फूड, तेली खाना मत खाओ, ठीक है? सो इन हिंदी मत या ना करो ऐसा सुनने में वर्ड सुनाई देंगे. और इंग्लिश में हाउ विल वी स्टार्टिंग द सेंटेंस विद डू नॉट और डोंट. नाउ कम्स एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. चिल्ड्रन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं? Such sentences always express excitement or strong feelings or emotions. It is recognized with an exclamation mark. So it's very easy to recognize them. Why? Because most of the time when someone has to make a strong feeling, किसी को अपनी बहुत ही strong feelings को और इमोशंस को एक्सप्रेस करना होता है, बताना होता है, रो करके, चिल्ला करके, हंस करके, दर्द में बोल करके, तो वो क्या होता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग, एक्साइटमेंट. तो ऐसी जो फीलिंग्स होती हैं, इन फीलिंग्स के दौरान जो वाक्य निकल के आते हैं, जो सेंटेंसेस बन के आते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम इन सेंटेंसेस के लास्ट में यू विल फाइंड एन एक्सक्लेमेशन मार्क. एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होता है? वी make a straight line then we put a dot. if you see in the bracket, सेंटेंस के एंड में एक ब्रैकेट में मार्क बना हुआ, एक निशान बना हुआ, दैट इज़ कॉल्ड एक्सक्लेमेशन मार्क. सो नाउ यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं. इट एक्सप्रेसेस एक्साइटमेंट. अब सपोज़ हमारी टीम स्कूल की जीत गई है, व्हाट डू वी से? हुर्रे. सो हुर्रे मीन्स this is a word which is showing that someone is happy. बहुत ज़्यादा खुश है, इसलिए even not happy, someone is too happy, बहुत ज़्यादा खुश है. और उस happiness में उसने एक word निकाला हुर्रे, ग्रेट. सो इस हुर्रे या हुर्रा, ग्रेट, इन सब के
इन वर्ड्स के आगे, ऐसे सेंटेंसेस के आगे हम एक एक्सक्लेमेशन मार्क डालते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, और स्ट्रॉन्ग फीलिंग, नॉर्मली हम अपना काम कर रहे हैं एंड सडनली व्हाट हैपन्स दैट एनी इंसेक्ट कम्स एंड स्टिंग्स अस. एक इंसेक्ट आता है, कीड़ा मकोड़ा आता है, हमें काट लेता है, डंक मार देता है, और हम क्या कहते हैं? ओ माई गॉड. इट मीन्स दिस ओ माई गॉड, आउच, नो दीज साउंड्स. हम इरिटेट हो रहे हैं, हमें गुस्सा आ रहा है, हम रो रहे हैं, हम हंस रहे हैं. सो इन वर्ड्स, इन इमोशंस, इन फीलिंग्स के दौरान जब हम कुछ भी बोलते हैं तो उन सेंटेंसेस के आगे हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं और सामने वाले को दिखाते हैं दैट दिस इज़ वन ऑफ माई स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स. ये मेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स में से एक है. नाउ लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स. व्हाट अ नॉइज़. अब पूरा स्कूल शोर कर रहा है, कोई गेस्ट आया है, वो क्या बोलेगा? या घर में बहुत ज़्यादा शोर है, कोई गेस्ट आया है तो क्या बोलेगा? What a noise these people are making. So what a noise. So here noise के आगे हम exclamation mark लगा देंगे. How kind of you. अब कोई बेगर, कोई बुज़ुर्ग आपके दोस्त के सामने भीख मांग रहा है एंड आपके पास पैसे नहीं देने को, और उसके पास पैसे हैं देने के लिए भी, और वो कुछ खा भी रहा है. सो बेगर ने उससे मांगा, प्लीज़ गिव मी सम मनी, प्लीज़ गिव मी समथिंग टू ईट. और उसने कहा, गो फ्रॉम हियर, गो अवे, डोंट कम टू मी, मेरे पास मत आओ. सो आप उसको देख के कहोगे, कैसा इंसान है ये, कैसे लड़का है ये. हाउ काइंड ऑफ यू, कैसे हो तुम, हाउ काइंड ऑफ यू. तो मतलब एक अजीब सी, स्ट्रेंज सी फीलिंग आई आपको अपने दोस्त के लिए एंड यू सेड दिस लाइन, हाउ काइंड ऑफ यू. नाउ देन एक्सक्लेमेशन मार्क. फिर आता है हेल्प. सो चिल्ड्रन, ऐसा नहीं है कि एक सेंटेंस आपको दिखेगा, एक वर्ड भी दिख सकता है, और वो वर्ड बोलने के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, अगर कोई हेल्प मांग रहा है और ये नहीं कह रहा प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी, अगर सिंपली कोई कह रहा है हेल्प हेल्प, इट मीन्स वो अपने हेल्प वर्ड को ज़ोर डालकर अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को व्यक्त कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है. दैट्स वाई वी विल पुट एक्सक्लेमेशन मार्क in the end of this word. Okay, so children, I hope that you have understood these 4 types of sentences. Now in the next video we'll see sub types of sentences, interrogative ke and declarative sentences ke, right? So children, thank you.